So dear students, in this video I will discuss about how to draw a graph of trigonometric functions. So first let us see how to draw the graph of fx equal to sin x. So first we make a table of values for fx is equal to sin x. Make a table like this. X and sin x. Take the regular angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And we know the period of sin x is 2 pi, so we will take a complete cycle and be continuing this table for other angles also. After that you will take 120, 135, 150, 30 added, after 90, 120, 135, 150 and then 180. Next angle will be after 90, 30 added, then 15 added, 15 added, 30 added, next 210 degree. And then continuing this table, we may come to other angles. This is x, this is sin x. Again x will be 240, 270, after 210 there will be 225 first, 225, 240, 270, then 300, 315 and then we can take two more angles 330 and 360, x and sin x. So these angles will plot on the graph paper. First of all, calculate these angles. For first quadrant angles you already know that sin 0 is 0, sin 30 is 1 by 2, that is 0.5, sin 45 is 1 by root 2 and 1 by root 2 is approximately 0.707. Then sin 60 is root 3 by 2, 0.866, sin 90 is 1. So these are first quadrant values, you can easily find. Next for sin 120, you can write as sin of 180 minus 60, that is sin 60. So therefore same value of sin 60 will be repeated here, 0.87 you can write after rounding off. Then sin 135 will be sin of 180 minus 45, so this will be same as sin 45. So again same value of sin 45 you can write, 0.71 you can write. Sin 150, sin of 150 will be sin of 180 minus 30, same as sin 30. So sin 30 is 0.5, sin 80 is 0. Now we come to third quadrant. So these angles we obtain. Next is sin 210. Sin of 210 is sin of 180 plus 30. That will be minus sin 30. So minus 0.5. So this will be minus 0.5. Now all values will be negative after this. Next here sin 225. Sin 225 is sin of 180 plus 45. It is minus sin 45. So minus 0.71. Sin 240, sin of 240 is sin of 180 plus 60, and this will give you minus sin 60.
and sin 60 is 0.87, so it will be minus 0.87, minus 0.87, sine of 270, sine of 270 is sine of 180 plus 90, so this will be equal to minus sine 90, that is minus 1, so this is minus 1. After this, sine of 300, next is sine of 300, sine 300 you can write as sine of 360 minus 60, and sine of 360 minus theta is minus sine theta minus sine of 60, so sine 60 means 0.87 minus 0.87, sine 315, sine 315 is equal to sine of 360 minus 45, this will be minus sine 45, so minus this value 45.71 minus 0.71. Next is sine 330, sine of 330 is sine of 360 minus 30, it is minus sine 30 minus 0.5, so this will be minus 0.5 minus 0.5, and then last value sine 360, sine 360 will be 0 clearly because it is a multiple of pi. So these are angles you will require. First quadrant positive, second quadrant positive, third quadrant it becomes negative. After third quadrant all values are negative. So now you have to start plotting these points on the graph paper. ये ध्यान रखना होगा कि साइन का जो रेंज होता है वो -1 +1 के बीच में ही होता है, इसलिए इस तरीके का आपको ग्राफ बनाना है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस विल शो एक्स origin x dash, y dash. So these are angles to be shown. Suppose here we show 360 degree, half of this will be 180 degree, this will be 90 degree, and this is say 270 degree. And maximum value is 1, minimum value is -1. So according to this you can show 30, 60, 90, then with 120, 150, here 210, 240, then 300, 330, these values we can take. So we are avoiding values of 45 or 225 because space is limited. इस तरह से इन वैल्यूज को हमें शो करते हैं. इक्वली 30 डिग्री के डिफरेंस पे सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे. तो साइन 30 पे देखिए आप क्या है, साइन 0 आपका यहाँ पे है, तो पहला पॉइंट ये हो गया. साइन 30 पे 0.5 होगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा आपका. साइन 60 इसके बाद आपका ये आ गया 0.86, 60 पे और आ जाइए 8.6 कहीं यहाँ हो सकता है आपका. साइन 91, साइन 90 आपका 1 आ गया मैक्सिमम. फिर साइन 120 पे आएंगे आप 0.87, तो 0.87 इसी के पैरेलल आ जाएगा आपका. जो साइन 60 पे था वही साइन 120 पे आया. फिर साइन 150, साइन 150 आएगा 0.5 है, तो 150 पे 0.5 वाली वैल्यू आपको रिपीट करेगी ये वाली. और फिर साइन 180 तो आपका 0 होता है, तो 180 पे 0. ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट कवर हो गया. उसके बाद नीचे आएंगे आप साइन 210 को देखेंगे -0.5, तो -0.5 यहाँ पे कहीं ले सकते हैं आप. फिर 240 है, उसके बाद -0.87 उसी के नीचे थोड़ा आएंगे, और फिर 270 पे -1, बिल्कुल -1 पे लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा. उसके बाद 300 आएगा आपका 0.87 यहाँ आ जाएंगे. उसके बाद 0.71, 300 नहीं ये 0.5 आएगा 330 पे, 330 पे 0.5 हो जाएगा आपका. और 360 पे 0 मिल जाएगा. इस तरह से आपको ये पॉइंट्स जब आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे
तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो ये आपको क्लियरली इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पर मेनली 45 वाली वैल्यूज को छोड़ दिया गया है, चाहे तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। आपके ग्राफ का स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए। तो मेनली ग्राफ आपका ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ ऊपर है, जो साइन की वैल्यूज पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ आ रहा है आपका। और कॉस के लिए जो ग्राफ होगा, जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, ग्राफ आपका नीचे। सो नाउ वी कम टू ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हमने देख लिया कैसे प्लॉट करना है, और इसी प्रोसेस को आपको बाकी सारे ग्राफ्स में अप्लाई करना है। इसलिए इस प्रोसेस को डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आउटपुट की बात करेंगे। जैसे आपका ये है ग्राफ आपका, अब यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है उसको देखिए। यहाँ भी पीरियड कॉस एक्स का भी 2 पाई होता है, इसलिए 2 पाई मतलब 360 तक का आप इसको शो करेंगे। यहाँ बीच में 180 ले लीजिए, यहाँ पे 90, यहाँ पे 270, इस तरीके से हो गया। और मेन पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे कॉस 0 आपका 1 होता है, मैक्सिमम यहाँ लिखा दीजिए आप, मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखा दीजिए। तो कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पॉइंट आएगा, कॉस 90 पे 0 होता है, कॉस 180 पे -1 होता है तो यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको। कॉस ऑफ 270 अगेन 0, कॉस ऑफ 360, कॉस ऑफ 360 पे वैल्यू आपकी 1 मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1। और बीच की वैल्यूज भी आप इसी तरीके से शो कर सकते हैं। मेनली आप ग्राफ आपको इस तरीके का मिलेगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट पीरियड जो होता है 2 पाई 0 से लेकर 360 तक का, वो ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है, साइन और कॉस एक्स का ग्राफ कैसे। अब इस ग्राफ को भी आप क्वाड्रेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर है, पॉजिटिव होता है कॉस। सेकंड ग्राफ, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नीचे है, मतलब सेकंड और थर्ड में आपका कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में आपका साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस नेगेटिव है। थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस नेगेटिव है। और फोर्थ में तो आपका कॉस पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ग्राफ आपका ऊपर है। और दूसरी चीज़ है कि आपको ये पॉइंट आपका इसी रेंज बढ़ना चाहिए इस तरीके का, ग्राफ मैक्सिमम आपका -1 +1 के बीच में है, 1 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं जा रहा है और -1 के नीचे कोई ग्राफ नहीं जा रहा है। ये आपको इस ग्राफ में मेनली ध्यान देना, आपको किस तरह से कॉस एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ प्रोसेस एक्चुअल ड्रॉ करने का मेथड वही है। यहाँ पर भी वैसे ही एंगल्स आप शो करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को शो करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को बार बार डिटेल में दिखाने की कोई ज़रूरत हमको नहीं लग रही है, क्योंकि आप एक बार प्रोसेस को समझ गए साइन कॉस में, साइन के केस में, तो वही चीज़ आपको कॉस एक्स के लिए मेनली आपको नेचर याद रखना है, ग्राफ किस तरीके का होगा। मेन कुछ एंगल्स आप शो कर दीजिए उसमें कि 0 पर क्या है, 90, 180, 270 जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं उनको आप दिखा दीजिए। साइन का ग्राफ आपने देख लिया किस तरीके का होता है, कॉस का ग्राफ ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो ग्राफ आपके बचते हैं वो थोड़ा इन ग्राफ से अलग है, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे क्योंकि उन ग्राफ में आपको अभी ये ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस है, मतलब यही पैटर्न आपका आगे भी चलता रहेगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं आएगा। और बाकी जितने फंक्शंस हैं उन सब में कुछ न कुछ अनडिफाइंड एंगल्स होते हैं, जहाँ पर वैल्यूज़ आपकी कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बनता है। इसलिए इस वीडियो में हम साइन और कॉस का डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी जो फंक्शंस हैं उनका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।